लवटे मोबाइल अरे कड़क है भाई ऐसे ही क्या First of all, good afternoon, everybody. It's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside. So, first of all, to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully, you're all cooled down now. वो किधर गया? चुप रहे तू देख. Hi, मेरे कबीर सिंह. जोरदार तालियां. नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती. गलती दूसरे लोगों की होती है. But love you guys and sorry for the fact that it's so hot. Nobody can do anything about it. We're all dealing with it. Thank you to all the media in the back and everybody who's seated here for coming here today to see the second trailer of Jersey. Uh, we never really thought we'll have to make a second one. It's difficult enough making a first one. But I guess sometimes when a film is special, it has enough material to be able to make a second trailer. So first of all, I'm very proud of the entire team that we were able to, and I must say that the second trailer was wholly and solely handled by Gautam sir. We all turned towards him and said that किसी से कुछ नहीं हो रहा है. The marketing team also was very confused about how to make a second trailer, but I mean, he has lived with this film for I think 5 years now, 4 years, 4 or 5 years. So I think he understands the heart of Jersey and the heart of Arjun Talwar and the heart of the relationship between Arjun Vidya and Kittu. And he came up with a trailer that I felt was very powerful, very impactful. I think the first trailer was really the heart of the film. You could see the emotionality of the film. You could understand the, the mood of the film. And this trailer really is the, call to action. 14th April, here we come. We're ready to go. We've dropped our second trailer. Proud to be here. And I'm coping all right, brother. I'm coping all right. Sometimes I need a little bit of IV and stuff like that, but other than that, I'm good. I mean, just before I came on stage, they were like, they just pulled the drip out. I was like, all right, let's go. I'm on. Put a colorful jacket on, look sharp, feel good, have a smile on your face. Always works. Sounds like a very shy thing to say. Well, I mean, tell me one thing. सुबह उठ के सबसे पहला thought क्या था आज? बहुत सारे thoughts होते हैं. Actually, सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो usually my son is sitting on my chest. That's how I wake up in the morning. So I wake up with a like I was like Papa. That's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children, Absolutely. and the afternoons are dedicated to films. Well, thank you, Shahid. Mrinal, आपके पास आ जाते हैं. Mrinal, should I call you Vidya? I would love that. Yeah, perfect. So आपके पास you play this very strong female character in this film, which we've seen as a trend over a lot of film choices that you've made, be it Tufan, Super 30, Dhamaka. What is that one character trait that you look for, or what are some things that you look for in the roles that you choose? Well, thank you for asking me that question. And good afternoon, everybody. I'm so happy to see you all again. Thank you. And coming back to your question, well, I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent and she's able to she's making sure that the family is financially stable. So I feel like there is a evolution as far as writing the characters in terms of Bollywood heroines are concerned. And I would really like to thank Gautam sir for giving me this opportunity, because it's such a meaty role and one of the most difficult role that I have played. First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines. And then you have a scene where you have to slap him. Then you have a scene where you're romancing him. So, it was overwhelming. And yeah, I must say that all the wives are not similar. Is room mein, I'm sure aap mujhse you will agree with me कि हर एक के wife में अलग-अलग qualities होती है. So I'm happy that I am contributing and it's such a great role. And next time I'm sure कि मुझे ये questions नहीं मिलेंगे कि Mrunal, you always play supportive roles. इस film में क्या हुआ? No, no. So this is a very special film for me because it was very, like I mentioned, it was extremely difficult. But having said that, there is one person in your life who will always push you to become better. And
like in this film you see the Kittu is the driving force for Arjun, you know, to get what he really wants, which you would see in the film. I would really like to thank my father because he's someone who really inspired me to be not just a better human but a better actress. That was absolutely lovely. Thank you so much, Mrinal. Gautam sir, man of the hour. Film 10 days away. I mean, it has been postponed since the last time the pandemic happened. So many emotions. Finally film aa rahi hai. Kaisa lag raha hai? Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming. Yeah, as you said, finally we are coming on 14th of April. Really thankful to the producers of the film who got a lot of patience to find us a date after so much time. And yeah, I mean, we postponed our film 3 days before release. It was pretty dramatic for me when we postponed that, because right after I got the news that we postponed the film, I was actually passing through City Mall where they're putting the hoarding of Jersey. So yeah, I was feeling bad about the guys who are taking so much effort to put the hoarding. But yeah, we are back again, and hopefully I'll see a hoarding when I'm going back to Hyderabad now. Yeah, very happy, very excited, and we want this film to come in theaters and everyone enjoy in theaters. Hopefully, you'll all love the film. Thank you. Thank you so much, Gautam sir. We loved the trailer. I'm sure you would agree with me. Do we love the trailer? Can we go to Aman sir? Aman sir, can we have a small question for you as well? Same question. आपकी ही film है और इतना time लग गया. It took some time, but it is here finally, 10 days away. How are you feeling about this whole situation? Just like Gautam said, likewise we same feeling थी. December से लेके अभी तक just waiting and waiting and waiting, and just excited to bring the film to you. आप लोग देख सकते हो trailer से. It's a big scale film. It's not just it's an intimate story, but big heart. But cricket's big, visuals are big, so we wanted to bring it to the big screen, and that was the fight always, and we didn't want to go anywhere else. So now excited. How lovely. Thank you so much. We will now open up to all our lovely media personals one by one. We'll take questions. Hi Shahid, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Hi, I'm fine. शाहिद लगभग 2 डेकेड हो गए हैं आपके करियर को, और मुझे लगा पिक्चर के लिए 2 दशक हो गए. मैं बोला नहीं यार, 2 महीने हुए. मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर. क्या अभी भी आप उस चीज़ को लेके काफ़ी नर्वस होते हैं, और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है, या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा? मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे में? जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव. इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस. यू नो दैट्स हाउ आई लिव्ड माय लाइफ. जैसे आपने कहा, मुझे ऑलमोस्ट 2 दशक हो गए हैं, 18 साल हो गए हैं, और नहीं 19 साल होने वाले हैं इस साल, और अगले साल 20 हो जाएंगे. सो आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. आई डोंट फील दैट ओल्ड, बट आई हैव बीन हियर फॉर अ व्हाइल. क्या है दैट एक्चुअली जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच कितनी हो सकती है उस पर डिपेंड करता है. यू नो, और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं, एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर, एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ. मैं स्टारडम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता. मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे, यू नो, तो वो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे. मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी, तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे. वो बिज़नेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए. तो वो शायद मैंने खुद समझा है. पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ, इनको मैं 18 साल से जानता हूँ. 18 साल, 12, 13, 15 साल. जब भी मैं से पहले आए थे ये, तो हाँ आई थिंक 15 साल हो गए. और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था. और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन. ताली बजा दो यार, प्रोड्यूसर ने. आपका भी पहला दिन आएगा, लोग ताली बजाएंगे, अच्छा लगेगा. यू नो, सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे, और धीरे धीरे समझाते भी थे कि यू नो अलग अलग जॉनर्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है. मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फ़िल्म की जो ऑडियंस है, मैं उसको मैक्सिमाइज़ कर पाया या नहीं. जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे, या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं.
और मेरी फ़िल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिकॉज़ जब फ़िल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है। तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फ़िल्म देखना पसंद करती है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, यू नो। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे। तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म। तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है। बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए। शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। एक चीज़ अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से, बतौर एक्टर या बतौर सन, क्या बताना चाहेंगे? वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे? उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ। वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात। मैंने यही सिखाया। Hello Shahid sir, in front of you. What's up, brother? Yeah. So the trailer 2 is also looking fantastic. So congratulations to the थैंक्स team. यार, पहले किसी इंसान ने रिस्पॉन्स तो दिया। हम लोग तो ये सोचे जवाब तो दे देंगे, पर लगा कैसा। Yeah. So I'm no. so happy you liked it. Thank you. Being a cricket fan, it's look fantastic and अभी तो यंग हूँ फिर भी रिलेटेबल लग रहा है। तो या सो मैं अभी तो यंग हूँ मतलब शादी नहीं हुई तेरी? नहीं बिल्कुल शादी के बाद सडनली ओल्ड हो जाएगा तू, देखना तो। ओके सो द क्वेश्चन इज क्रिकेट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जैसे कि हमने देखा कि मूवी 1-2 बार पोस्टपोन हुई दिसंबर में, फिर अभी 14th। खैर आज के टाइमिंग क्लैशेस के बारे में तो छोड़ ही देते, बट मेरा क्वेश्चन यही था कि मूवी में दिखाया गया है जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि करियर में भी एक शिफ्ट लाने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है? मुझे ना मेरे काफ़ी एक बहुत करीबी, बहुत सीनियर लाइक फैमिली मेम्बर थे, उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है दे आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज़। और अगर आप देखें जब भी ज़ोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं, छोटे पेड़ नहीं गिरते, वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं। और बड़े पेड़ जो होते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल, एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आपको समझ ही नहीं आता कि ज़िंदगी में कभी कभी टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना ज़रूरी है। और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से ज़िंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी, कभी फेलियर आएगी, तो लाइफ में आप चलते रहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो ज़िंदगी के लिए बेहतर है। बिकॉज इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है। सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे, हलवा बनाएंगे उसका? ज़िंदगी भी तो जीनी है। जी शाहिद, मेरा सवाल आपसे है। यहाँ बाप कैसी हैं आप? जी बस इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज आप। थैंक यू। ये जो बिंदी लगाई है ना आपने गेम कर दिया है। हाँ? थैंक यू। तो साइड में तू क्यों शर्मा रहा है? तूने थोड़ी बिंदी लगाई है। जी जी तो मेरा सवाल आपसे ये है, अभी अभी आपने कहा कि आपके माता पिता दोनों बहुत, मेरा 2 सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टैलेंटेड एक्टर्स थे, तो क्या कहीं कोई हैं वो हैं। आप सॉरी थे बोलेंगी मुझे घरे चपेट पड़ेगी। sorry, तू होगा, थे, हम तो हैं। सॉरी माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी मच इन द जोन। दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं। थैंक यू जी। तो क्या कहीं जो आपने कहा कि उससे कम मैं होड़ नहीं दूंगा, जो आपका जो डायलॉग है, और आप क्योंकि आप खुद पिता बन चुके हैं,
तो क्या आपके बच्चों, जैसे किट्टू ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी एक जर्सी को लेकर, उसी तरह क्या आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने आपको कुछ आप में बदलाव लाया? सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था। शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है। क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना, तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, वो आपको हमेशा ऐसा लगता है, वाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, वाई डज ही डू दिस, वाई डज लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी, ये सब एक तरफ लगता है। लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे। बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने 30s में पहुंच जाते हो तो आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो। अगर 100 पेज की पन्ने की किताब है तो आप कहीं 40-50 पेजेस पे हो। आपका हर रिश्ता जो है वो 40-50 पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिश्ता होता है, उसको आप 1 से फिर से स्टार्ट कर सकते हो, और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो। तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में, वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट। सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है, मैं जैसा रहूँगा ये मुझसे वो सीखेगा, और हमारी रिलेशनशिप उसका दारोमदार मेरे ऊपर है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारोमदार। सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है। और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का? वो था कि क्या पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम है, बहुत गुड लुकिंग है। मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं मुझे। थैंक यू। नहीं, मैं ऑनेस्टली कहती हूँ, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। जी जी। लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था, प्रेशर था कि? प्रेशर नहीं था एक्चुअली, मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था। मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया, और मॉम सिंगल पेरेंट थी। मैं और ईशान, मैं थोड़ा बड़ा था, ईशान तो बहुत ही छोटा था। तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं, और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई, तो लोगों ने जाके थोड़ा वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था, नहीं होता था वो टाइम पे, आई डोंट नो इफ इट वाज देयर, बट नोबडी नहीं था ना 2003 रीडिफ याहू, हाँ। तो वही तो सर्च इंजन्स आई थिंक इतने नहीं थे, तो लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है, तो पता चला अच्छा ये है। तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ, तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। लाइक मृणाल तो फिर भी टीवी की बहुत बड़ी स्टार है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली, शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टीवी। बट मेरे लिए तो ऐसे ही था, ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर। और मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे। Hi everyone, Preeti here from first. Where are you, Preeti? Hi, Preeti. तुझे तो होस्टिंग करनी चाहिए यार। Thank you. यार तू चले जा यार, वी डोंट नीड यू, है ना? प्रीति है ना यहाँ पे, और वैसे उसका नाम भी प्रीति है, तू चले जा। Okay, so Preeti here from first India Filmy. मेरा सवाल आप सबसे है कि इस मूवी से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली है या फिर क्या कुछ मोटिवेशन मिली है आप सबको? फर्स्ट साइड नहीं, फर्स्ट डायरेक्टर, बिकॉज उन्होंने फिल्म बनाई है, है ना? Yeah, I told this earlier also. I mean, the basic idea writing this story came from the thought that we all give value to a person on the amount of success he had. So we always quantify the success and see this person is greater and this person is much greater. But we might be forgetting the similar people